Yes, good morning, students. In continuation of our Java programming, so we are understanding day 9 programming logic. So already we have covered the four important logic like a Fibonacci series, prime number series, then palindrome number series, and factorial number series. So in this video, I will explain Armstrong number series and Peterson number series. So the two important logic for the Armstrong and Peterson we will understand by this video. So I am directly jumping to Armstrong number series. So this is the Armstrong number. The very first, try to understand what is an Armstrong number. So you can say an Armstrong number is a positive m-digit number. Now condition is that this Armstrong number should be equal to sum of mth power of their digits. If this condition will follow by any number, then that number is called as a Armstrong number. Now I will explain by some example. Let I have a one composite number 1634. So whenever you will make a power of each digit by the 4, because here 4-digit number is there, so you make a power of m, that is the 4. So 1 to the power 4, 6 to the power 4, 3 to the power 4, and 4 to the power 4. So as soon as you will get a individual this calculation, let 1, 1296, 81, and 256. Then you have to sum of this all 4-digit number and get one new number, say 1643. Now this new number should be same as your input number. If both number are same, then that number is a Armstrong number. So our task now to display Armstrong number between 1 to 500. Okay, so this is our today's task. Now I am directly reaching to our this main program, and I will explain one by one how we can make a code of this program. So our task is to make a Armstrong number. This is our task. Clear? Now in this task also we have to display 12407. Okay, so very first we have to create a class of main named. So okay, this is your main class. So I will make a main class. Now after this main class we will make a main method. So in main method, very first we will make our end of program as usual. जो हम लोग अभी तक करते आए हैं वैसे ही हम करेंगे. तो end of program. ठीक है. Now run this program and check whether you are getting the output end of program or not. So let I have one connecting to server. So I have to make a connection. Now as soon as I will give the internet connection, I should get a end of this program message. Means we are getting output by this internet online program. Okay, now we have to make a logic.
So I have to very first create a driver code. I have to make it my driver code. This is your driver code in which we will make a exactly what we want, and by this driver we can get a all sub instruction coding. Okay, so very first we have to make a one for loop, and this for loop start from 1 to 500. Okay, so this is the my for loop. In this for loop we will generate the all number from this 1 to 500. Okay, now see how we can generate. So click again on the run. Now check whether you are getting or not. Okay, initially we are getting an error because we have to declare our data type. So here I should be integer, and we are getting this all number from 1 to this 500. So we can also get this same in the one line. So here there is a method print instead of this print line. So here you can easily get this all number up to here 500 number. But in this 500 number we have to find out which number is a Armstrong number. So very first we have to make a one method. Now first if what is the Armstrong number? So Armstrong is Armstrong number. So we will send a one argument, say that is I. So as soon as we will send this I, we should get a response from our sub method. So we have to create a sub method. Now in this sub method, you have to create the name static boolean, because I want a answer what, and I want a answer what, boolean. I want answer as a boolean because I want to get a true and false. So boolean. Now Armstrong number, and I should get a one parameter, say int n. Now I will make this as a your number, and here I will print my that number to check as a Armstrong number. So here this number should be print what? Print here you have to print the message, say you are in the Armstrong. Okay, now we will call this one whether we are getting or not, return say 0, that is the false, or we can write here simple false. Now check if we are sending this false, we should not get end of program because we are sending our false result. So false is there, false हम भेजेंगे, तो false should be in the your what है ना, इसको हमको लिखना पड़ेगा in the false concept, then this will be clear. Now as soon as you will get, now here we are getting every number as a like this, you are calling this is strong number, is a strong number, is, so we are actually printing this is strong number, and we are also sending this one. So at last we should get a what, end of this program. Okay, this is not our actually requirement. Our requirement here we have to make this concept. Okay, so let the if your number, if your number that is n, if your number should be your new number, and a new number is there.
So if new number is equal to same, then we can say return true, else return false. So here we have a one number, and that number should be calculated with this new number. So very first we have to calculate uh, number of digit in the number. So how we can calculate number of digit? Let while your n greater than 0, and we can say your this n is equal to n by 10. Okay, and then we can say digit plus plus. Okay, so very first we have to make a int digit is equal to 0. तो यहाँ digit बना देते हैं, and very important we have to secure our n को secure करना है, तो we have to make a one temp number as a n को disturb कर रहे हैं, तो n को पहले किसी temp पे हमें रखना पड़ेगा. तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, this temp is equal to new number लेके आएंगे. तो temp को हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ डिजिट. तो नंबर ऑफ डिजिट कैलकुलेट कर लेते हैं, एंड आफ्टर गेटिंग ए नंबर ऑफ डिजिट we have to make a that property of Armstrong. Now we will make a check. What check? Number is Armstrong or not. ठीक है, तो we have to check a number is Armstrong. So let I have to again make a your what while यहाँ पे हमको क्या करना है, that will be your n, तो यहाँ पर डिस्टर्ब हो गया, तो अगेन वी विल यूज आवर temp को हम लेके चल रहे हैं. तो let very first again make a n is equal to temp, फिर temp को हम n में लेके आ जाएंगे, so that we can get a new what, we can get a new temp. Okay, now after that we have to make a all, है ना. यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें बनाना है let your number is this number say 1634 concept. 1634 is equal to 1 of power 4 like that. Then your what 6 power of 4, then plus 3 power of 4, and lastly we have 4 power of 4, like that we have to create. तो while your number है ना, एक एक नंबर से हम लोगों को निकालना है, तो while your temp greater than 0 और n greater than 0. ठीक है, now we will make a this logic. कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले you have to calculate the last number is equal to your this n divide by 10. तो इसको हम mod लेंगे, हमने mod 10. तो फर्स्ट हम लास्ट नंबर निकालते हैं, and last number is equal to what, your sum is equal to, we have to calculate the power हमें निकालना पड़ेगा. तो मैथ हम यूज करते हैं, in that math we have to calculate the power method. In that power method we have a last number and power of digits. तो जो भी आपका digits आएगा उसके अंदर में उसको हम पावर कर सकते हैं. तो likewise I am getting a sum, so I have to sum is equal to sum plus this one. So sum plus is equal to this will be there. Now we have to terminate the or discard the last number also. So we can make a n
we can make a n is equal to n divide by 10. तो यहाँ से मुझे इस चीज से निकल के आ सकता है. तो this is my first requirement. If find a number of digit. Second requirement, that we check the number is a strong number, Armstrong number. And third, we have to say checking of this check with the your number. तो इसको तो मैं जरूरत नहीं है, इसको मैं कमेंट लगा देता हूँ. If this is his number, then we have to print. चलो अब इसको एक बार रन करके देखते हैं, और अगर कुछ गलत होगा तो सोचेंगे. गलती होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए. हमें क्या करना था? नंबर ऑफ डिजिट निकालना था. देन चेक द नंबर इज स्ट्रॉन्ग, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है, फिर हम इसको अपने न्यू नंबर से चेक कर रहे हैं. तो लेट वी हैव ए एग्जिट इज व्हाट वी वांट. चलो ठीक है, एक बार रन कर ले. अब रन करके देखते हैं वेदर वी आर गेटिंग और नॉट. तो हियर वी आर गेटिंग वेरी सिंपल error. What error? We are missing the semicolon. Thanks to compiler giving the very appropriate result. then नहीं होगा, ये नहीं होता तो हम लोगों को बहुत दिक्कत हो जाता. तो this will be written true, else return आएगा, 2 बार return आएगा. return false, return true, else return false. ठीक है. चलो कुछ तो हम लोगों को गलतियां रह गई. Now we have also here some cannot find this symbol n. n नहीं मिल रहा है इसको. तो क्यों नहीं मिल रहा? अरे यार, ये n हमने कैपिटल ले लिया था, तो इसको स्मॉल ले लेते हैं. चलिए, तो ये हो गया हमारा काम. Now what we are last number को भी int करना पड़ेगा. तो int is there, then sum को भी करना पड़ेगा. तो your sum should be also initially 0. तो इसको 0 बना लेते हैं. Now we will get your new number. न्यू नंबर के तरफ क्या दिक्कत हो रहा है इसको? न्यू नंबर. तो let I have new number. Why we are putting? अच्छा, न्यू नंबर क्यों बोल रहे? That will be your sum. न्यू नंबर is nothing but that is the your sum. Sum is a new number. ठीक है, sum को हम न्यू नंबर ही बोलते हैं. Now we will get a output. Yes, now I am getting a output. मुझे क्या बनाना था? अरे वाह, सेम आ गया मेरे पास. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 153 370 371 and 401. Good. So likewise we can make our logic for any programming. Okay. Now we will see the new one more type of series. Now we will see the Peterson number. So very first we have to find the definition. Definition को understand करते हैं, फिर उसके बाद हम कुछ steps को भी समझने की कोशिश करते हैं, और फिर प्रोग्राम बनाएंगे. तो let we have a what is a Peterson number. तो a number is said to be Peterson if the sum of factorial of each digit is equal to the sum of number itself. बहुत कंडीशन लगा दी इसमें. ठीक है. Then you can say the Peterson number. इसको एग्जांपल से समझते हैं. A number is said to be Peterson. तो let we have a 145. तो 145 हम चेक करेंगे कि ये पीटरसन है कि नहीं है. तो इफ सम ऑफ फैक्टोरियल ऑफ ईच डिजिट, देखिए 1 को फैक्टोरियल निकाल दिया, 4 का फैक्टोरियल निकाल दिया, 5 का फैक्टोरियल निकाल दिया. तो whenever you will find the factorial of each digit, जब निकाल देंगे फिर उसको हम सम कर देंगे, तो is equal to the sum of number itself. तो यहाँ पे हमने इसको सम किया. 1 का फैक्टोरियल 1, 4 का फैक्टोरियल 24, 5 का फैक्टोरियल
120। तो जब इसको हमने सम किया तो वी आर गेटिंग 145, दैट इज इक्वल टू द इनपुट नंबर 145। तो इस तरीके के नंबर को हम 145 को क्या बोलेंगे, पीटरसन नंबर। ओके, तो लेट आई हैव टू क्रिएट ए सीरीज। अब मुझे सीरीज बनानी है, तो लेट थोड़ा सा लंबा सीरीज बना सकता हूं मैं, 5000 वाला देखता हूं क्योंकि बहुत कम नंबर ही पीटरसन नंबर बनेंगे। तो लेट आई हैव स्टेप्स टू फाइंड ए पीटरसन नंबर। आपको पता तो चल गया होगा करना क्या है। देखिए, सबसे पहले क्या करना है, रीड और इनिशियलाइज ए नंबर। दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। भाई रीड करेंगे हम या इनिशियलाइज कर सकते हैं। देन फाइंड द लास्ट डिजिट, है ना, ऑफ ए गिवन नंबर। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हर बार लास्ट नंबर को फाइंड करना है। सबसे पहले 5 को फाइंड करेंगे, फिर 4 को फाइंड करेंगे, फिर 1 को फाइंड करेंगे, ऐसे करेंगे। देन जो भी लास्ट नंबर आ रहा है उसका हम निकालेंगे फैक्टोरियल, ठीक है। और उसके बाद उस फैक्टोरियल को हम अपने ऐड में सम करते चले जाएंगे। और ये काम हम रिपीट करेंगे फ्रॉम 2 to 4। जो भी हमारे पास में इंस्ट्रक्शन है 2 to 4, इन सबको रिपीट करेंगे जब तक कि हमारा जो n नंबर है वो 0 नहीं हो। एक्चुअल में लॉजिक जितनी भी बन रही हैं सेम ही बन रही हैं, ओनली द सम मिस्टेक, सम चैलेंजेस आर देयर कि कहीं हमको फैक्टोरियल निकालना है, कहीं पावर निकालना है, लाइक दैट। लास्ट काम क्या है, कंपेयर द सम। अब हम कंपेयर करेंगे सम को विद द इनपुट नंबर से n से हम कंपेयर करेंगे। अगर ये दो नंबर सेम है तो हम डिक्लेयर कर देंगे कि हमारा नंबर पीटरसन है, अदरवाइज वी विल से नॉट पीटरसन। तो दिस इज द लॉजिक, है ना। अब इसे बनाना है तो देखिए क्या करेंगे हम। अभी हमारे पास में मेन क्लास है, दिस इज द योर मेन क्लास। चलो इसको बड़ा कर देते हैं। नाउ ऑल्सो वी हैव द ड्राइवर कोड, ये ड्राइवर कोड है हमारे पास, इसको भी बड़ा कर देता हूं मैं। नाउ आई हैव वन सब मेथड नोन एज ए इज पीटरसन। तो जैसे हमने अभी बनाया था इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, वैसा ही इसको बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमको दिख रहा है कि सबसे पहले डिटरमाइन द लास्ट डिजिट ऑफ ए गिवन नंबर and then determine your factorial of this given number, then sum of that factorial and then remove the last digit। उसका काम ही हो गया तो उसको रिमूव कर देंगे। फिर लास्टली हम उसे कंपेयर करेंगे। अगर ये सही होता है तो रिटर्न when sum is equal to number। तो इसमें हम रिटर्न कर सकते हैं दोनों का जो भी रिजल्ट आया, ये भी एक तरीका है रिटर्न करने का। तो हियर वी आर टेकिंग ए रिटर्न डेटा टाइप एज ए बूलियन, ये याद रखेंगे। तो चलिए इतनी सारी चीजें हमको याद रखनी है और बनाने के लिए हम जो पुराना मेथड है वैसे ही काम करेंगे, ठीक है। नाउ आर यू रेडी? यस आई एम रेडी। ओके, नाउ से हमें क्या करना है, सबसे पहले भाई ये वाले प्रोग्राम को विदा कर देते हैं, इसको विदा कर दीजिए। अब आइए कि आपको क्या बनाना है, यू वांट टू मेक ए पीटरसन नंबर। तो लेट दिस इज द पीटरसन नंबर, इसको हम अपने चैलेंज में लेके आते हैं पीटरसन नंबर। और वी हैव टू मेक ए दिस प्रोग्राम। कब तक बना लें भाई, इसमें मैंने जैसे बनाया है 5000 तक, है ना, 0 से 5000 बनाना है अपने को इसको। चलो ठीक है, 0 to 5000 बनाएंगे, है ना। फ्रॉम या बिटवीन 0 to दैट इज द 50,000, 5000 भी नहीं 50,000 बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि बड़ा नंबर है ये, मिलेगा नहीं अपने को, तो थोड़ा दूर तक जाना पड़ेगा। ओके, तो वेरी फर्स्ट मेक ए यूर व्हाट मेन क्लास बना लीजिए सबसे पहले। नाउ इन दिस मेन क्लास यू मेक ए मेन मेथड बनाते हैं। तो हमारा जो ट्रेडिशनल काम है उसे कभी नहीं भूलेंगे। तो प्रिंट एलन एंड हियर वी विल राइट एंड ऑफ प्रोग्राम, ठीक है भाई। अब इसको रन करके देखते हैं, वी शुड गेट ए आउटपुट एज ए एंड ऑफ प्रोग्राम।
बस ये मुझे पहले से मिल जाना चाहिए। तो पहला तो मेरा 50% कॉन्फिडेंस यही डेवलप हो जाता है। अब मुझे क्या करना है, 500 के लिए एक लूप बनाना है। तो लेट फॉर int I is equal to 0 and I lesser than equal to 50,000। हो गया ना। दिस विल बी, कितने जीरो आएंगे भैया, 4 जीरो आएंगे ना, याद रखना 4 जीरो आएंगे। 50,000 में 1 लाख में 6 जीरो आते हैं, 1 लाख में 6 जीरो आते हैं। हम ज्यादातर याद तो नहीं रख पाते हैं, पर याद रखना चाहिए। ओके, y प्लस प्लस। नाउ हियर वी विल मेक ए इफ, है ना, इफ कंडीशन बनाते हैं। इसमें क्या रखना है हमें, आपको पीटरसन नंबर बनाना है ना। पीटरसन नंबर इज पीटरसन नंबर। अगर ये पीटरसन नंबर है तो प्रिंट दैट नंबर, तो हमें प्रिंट करना है। ठीक है, तो लेट आई हैव दिस कंसेप्ट, यहाँ पे मुझे प्रिंट करना है आई, और आई के साथ मेरे पास अगर कोई दूसरा नंबर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, उसको भी हम सेम लाइन में प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो दिस इज द आवर रिक्वायरमेंट। अब आते हैं हम, इसको क्या है हमारा, ये ड्राइवर कोड है भाई, इट इज ए ड्राइवर कोड। नाउ कम टू दी आवर सब मेथड। तो सब मेथड क्या है, स्टैटिक boolean and we have a is पीटरसन नंबर। तो हम इस पीटरसन नंबर को यहाँ लेके आते हैं। ओके, तो इस इन पीटरसन नंबर, अच्छा यहाँ पर भी हमको आर्गुमेंट डालना है, दैट इज आई। अब यहाँ पर भी हमें आर्गुमेंट, दैट इज ए इंट एन। एज यूजुअल जैसे हम लोग करते आए हैं वही करना है, और कुछ भी नया कंसेप्ट नहीं है। ओके, अरे मैं कहाँ चला गया, मैं मेन क्लास में चला गया, मेरे को यहीं रहना है। ठीक है, सब मेथड में। नाउ मेक ए दिस मेथड। अब मेथड में वही हमारा पुराना जो सिंपल कंसेप्ट है, व्हाइल n ग्रेटर देन 0, ये तो रहेगा ही। नाउ मेक ए योर ब्लॉक, इन दिस ब्लॉक वी विल मेक ए अवर डिजिट्स, लास्ट डिजिट बना लेते हैं। तो दिस इज द योर लास्ट नंबर, लास्ट नंबर इज इक्वल टू n mod 10। यहाँ से लास्ट नंबर निकल गया। अब लास्ट नंबर निकलने के बाद उसका फैक्टोरियल बताना है ना। जो लास्ट नंबर निकल गया है उसका फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल बनाने के लिए योर फैक्ट इज इक्वल टू 1 लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करना है। अब एक फॉर लूप बना लेते हैं, जिसके अंदर फॉर लूप हमारा f रहेगा। f इंडेक्स लेते हैं हम लोग, और ये कहाँ से कहाँ तक चलाना है आपको, ये चलाना है 2 से कहाँ तक, लास्ट नंबर तक चलाएंगे। ठीक है, 1 से भी चला सकते हैं। तो दिस विल बी योर लेसर देन इक्वल टू योर लास्ट नंबर। अब यहाँ पर हमें f को इंक्रीमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। नाउ द फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई बाय f। तो f से मेरा यहाँ पर क्या निकल गया, फैक्ट निकल के आ गया है। जब फैक्ट निकल के आ गया तो अब क्या करना है, मुझे इसका सम कर देना है। तो सम इज इक्वल टू सम प्लस दिस फैक्ट। ठीक है, लेकिन ये वाला जो सम है, इट शुड बी योर इनिशियल 0, ये 0 रहेगा आपका। तो यहाँ से सम निकल के आ गया ना। बहुत जल्दी से अब नजदीक पहुंच गए हम लोग, ज्यादा दूर की बात नहीं है। तो ये मैंने सम निकाल दिया, सम का फैक्ट निकाल दिया, उसका सम कर दिया। अब मुझे क्या करना है, जो लास्ट नंबर है ना उसे रिमूव कर देना है भाई। तो लास्ट नंबर को रिमूव करने के लिए क्या है, n इज इक्वल टू n डिवाइड बाय 10। तो यहाँ से आपका जो भी लास्ट नंबर है कम होते जाएगा, यानी पहले यहाँ का आपका जो नंबर है उसमें से एक एक नंबर डिस्कार्ड हो। बस इतनी सी तो बात है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू मेक ए इफ कंडीशन। उसमें क्या बताना है कि अगर आपका जो ओरिजिनल आपके पास सम आ गया, दिस इज द न्यू नंबर एंड योर ओल्ड नंबर। अब ओल्ड नंबर आपको कहीं आपने उसको बचा के रखा हो तो ठीक है, नहीं बचा के रखा है
तब तो फिर दिक्कत आ सकती है। तो n के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, तो n को कहीं ना कहीं हमें बचाना पड़ेगा। तो लेट t इज इक्वल टू n, तो मैंने यहाँ पर t को ले लिया। तो temp इज इक्वल टू, दिस इज योर temp। तो टेम्प में हम देख लेते हैं इन दोनों को मैप करके, और इसमें से जो भी रिजल्ट होगा वो आपका आउटपुट चला जाएगा। तो आई विल से रिटर्न, ठीक है, सीधा रिटर्न भेजो। तो रिटर्न में सीधा बुलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व होगा। तो यहाँ से आइदर ट्रू मिलेगा या तो यहाँ पर आपको मतलब 1 मिलेगा या फिर आपको 0 मिलेगा, ठीक है। तो दिस इज द कंसेप्ट। इफ आई एम गेटिंग दिस 1 तो आई विल गेट ए आउटपुट, अगर नहीं है तो हमें नहीं मिलेगा। तो फिर अब बस रन करने की देर है। थोड़ा सा मैं रन करके देखता हूँ। ठीक है, 1% तो देखो ऑप्शन रहना पड़ेगा गलती का। अब 100% में 99% तो अपन बना के तैयार कर रहे हैं। तो चलिए रन करके देखते हैं। नाउ आई हैव दिस रन, थोड़े से मिस्टेक है जैसे लास्ट नंबर, ठीक है भाई, ये मैं कंसीडर कर सकता हूँ क्योंकि हो जाए, मैं अपन बाद में उसको सोचते हैं कि कौन सा नंबर आपका ये है। रिटर्न, देन रिटर्न सम इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ रिटर्न सम, यहाँ पर क्या रहा, कैन नॉट फाइंड दिस सिंबल, है ना आपको, अरे स्पेलिंग गलत है शायद, TUR रिटर्न, तो रिटर्न इज देयर, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या होने वाला है। यस, अरे वाह यार, मेरे को यहाँ पर पीटरसन नंबर मिल गए हैं। तो देखिए मैंने कौन सा पीटरसन लिया था, एग्जाम्पल में 145 लिया था। तो 145 आई एम गेटिंग हियर, है ना, ध्यान से देखो 145 आपको यहाँ पर मिल रहा है। उसके बाद आपका नेक्स्ट पीटरसन नंबर इज ए 40585। तो चलिए ये हमने आज समझ लिया कि पीटरसन नंबर कैसे बनाया जाता है। अब केवल 2 और बचे हैं, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ओके, तो थैंक यू टू ऑल।